الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية نمبر 249 بسم الله الرحمن الرحیم فلما پھر جب فصلہ باہر نکلا طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمائش کرنے والا ہے تمہاری بنہر ایک نہر کے ساتھ فمن شرب منہ پس جو کوئی پی لے گا اس میں سے یعنی اس نہر کے پانی میں سے فلیس منی تو بس وہ مجھ سے نہیں ہوگا یعنی اس کا میرے لشکر سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا ومن اور جو کوئی لم یطعم ہو جو اسے نہ چکھے یعنی جو اس میں سے نہ پیے فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا سوائے اس کے من اغترف جو چلو بھر پی لے یعنی ایک ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی پی لے ہاتھ بھر پانی اور فتم بیدہی ایک چلو اپنے ہاتھ سے تو اتنا تو کافی ہے اس سے کوئی حرج نہیں لیکن جو پیٹ بھر کر پانی پی لے گا تو پھر وہ لشکر سے نکال دیا جائے گا فشربوا منہ تو انہوں نے پانی اس میں سے پیا الا قلیلا منہ مگر ان میں سے صرف چند لوگ تھے جنہوں نے جو اس آزمائش میں پورا اترے فلما بس جب جاوزہ وہ اس کے پار گزرے یعنی اس نہر سے پار ہو گئے ہوا وہ یعنی طالوت والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے اس کے ساتھ یعنی طالوت کے ساتھ جو اہل ایمان کا لشکر تھا وہ سب جو اس آزمائش میں پورے اترے وہ اس نہر سے پار ہو گئے اور جو آزمائش میں پورے نہ اترے وہ وہیں رہ گئے یعنی لشکر سے الگ ہو گئے قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں ہے طاقت لنا ہمارے لیے الیوم آج کے دن جالوت کے ساتھ وجنودہ اور اس کے لشکر کے ساتھ یعنی مقابلہ کرنے کی ہم میں اب سکت نہیں کیونکہ انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا تھا تو ان کے اندر سے لڑائی کرنے کی جو ہمت تھی طاقت تھی وہ جاتی رہی قال الذین کہا ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کم کتنی ہی مرتبہ من فئۃ جماعتیں قلیلۃ چھوٹی کم تعداد میں کوئی جماعت یا کوئی لشکر غالب آ گئے فئۃ لشکر کے جماعتوں کے کثیرۃ بڑی کثیر تعداد میں باذن اللہ کے حکم سے جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کی امید اور یقین ہوتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت قلیل لشکر نے بہت کثیر لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی یعنی غالب آ گیا واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما اور جب عرضوا آمنے سامنے ہوئے لی جالوت کے
व जुनूदिही और उसके लश्कर के, कालू तो कहा उन्होंने, यानी इन अहले ईमान ने जिनका अपने रब से मुलाकात का पूरा पक्का यकीन था, तो वो सब्र से इस्तिकामत से इस मुकाबले के लिए डट गए। तो उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, अफ़्रिग़ अलैना, तू उंडेल दे हमारे ऊपर, डाल दे हमारे ऊपर, सब्रन सब्र, यानी सब्र हमारे दिलों को सब्र से भर दे, वसब्बित और जमा दे अक़दामना हमारे कदमों को, वंसुरना और हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफ़िरीन, काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह से मदद की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से सब्र और इस्तिकामत मांगते हैं। फहज़मूहुम, बस उन्होंने शिकस्त दी उनको, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, फ़क़तला और कत्ल किया, दाऊद ने, जालूत को, व आताहुल्लाहु और दिया उसको अल्लाह ने, अल मुल्क यानी बादशाहत, वल हिकमत और हिकमत, व अल्लमहु और सिखाया उसको, मिम्मा उसमें से, जो यशाउ जो कुछ चाहा। तो जो कुछ भी चाहा अल्लाह ताला ने दाऊद को इल्म अता किया, इल्म और हिकमत और बादशाहत जो चाहा अता किया। लौला और अगर ना, दफ़उल्लाहि हटाता अल्लाह, अन्नास लोगों को, बादहुम बिबादिन उनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से, लफ़सदतिल अर्दु तो ज़रूर फ़साद बर्पा हो जाता ज़मीन में, ज़मीन ज़रूर तबाह व बर्बाद हो जाती। वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला, ज़ू फ़ज़लिन फ़ज़्ल व करम करने वाला है, अलल आलमीन तमाम जहानों पर, तमाम जहान वालों पर, तमाम दुनिया की मखलूक़ात पर। तिलका आयातुल्लाही, ये है अल्लाह के अहकाम, नतलूहा जो हम पढ़कर सुनाते हैं, इसको इन अहकामात को पढ़कर सुनाते हैं, अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बिल हक़्क़ि हक़ के साथ, ठीक-ठीक, व इन्नहु और व इन्नहा सॉरी व इन्नका और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लमिनल मुरसलीन अलबत्ता रसूलों में से हैं, यानी आप ज़रूर रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि आप ही सच्चे रसूलों में से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेसन में हमने देखा कि यहूदियों ने, बनी इसराइल ने जिहाद की इजाज़त तलब की और अपने लिए एक लीडर बादशाह की शक्ल में तलब किया कि हम में से किसी को बादशाह मुकर्रर कर दें। अब अल्लाह ताला ने उनकी इस फ़रमाइश पर बादशाह भी मुकर्रर कर दिया, जो कि तालूत को किया, और उनके लिए जिहाद का हुक्म भी नाज़िल फरमा दिया। तो अब हमने देखा कल के लेसन में कि उन्होंने तालूत को बादशाह मानने से भी इनकार किया और जिहाद करने से भी अक्सर लोगों ने मुँह फेरा। तो फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों को तालूत बादशाह की निशानी बताई, और वो ये कि उनके दौरे हुकूमत में ताबूत सकीना इनको मिल जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। तो ये निशानी पूरी हो जाने के बाद इन लोगों ने तालूत को अपना बादशाह मान लिया। अब आगे यहाँ से उस जंग का ज़िक्र हो रहा है जिस जंग की इनको जब इजाज़त दी गई, इनको हुक्म दिया गया कि अब आपने कुफ़ार से मुकाबला करना है, तो उस वक़्त फिर क्या हालात पेश आए। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद, फिर जब तालूत अपने लश्करों समेत चल खड़ा हुआ, क़ाला इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर, तो उसने कहा अपनी कौम से, अपनी आवाम से, यानी जब जंग के लिए निकल पड़ा लश्कर के साथ, कि रास्ते में एक नहर है जिससे अल्लाह ताला तुम्हारी आज़माइश करने वाला है। यानी हक के रास्ते में तुम निकल तो आए हो, लेकिन रास्ते में आज़माइशें आएँगी। जो उन आज़माइशों में पूरा उतरेगा, वही अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में कामयाब हो पाएगा। बाकी लोग रास्ते में ही रह जाएँगे। फमन शरिबा मिन्हु,
جس نے اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا فلیس منی، وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ ومن، اور جو کوئی لم یطعمہ، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے، فإنہ منی، تو وہ میرا ساتھی ہوگا جو اس میں سے پانی نہ پیے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، الا یہ کہ وہ چلو بھر پانی پی لے، یعنی ایک ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے، یعنی اگر آپ دونوں ہاتھوں کو جوڑیں اور ایک پیالہ سا بن جاتا ہے، اس میں جتنا پانی آ جاتا ہے تو اتنا پانی پی لیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پیٹ بھر کے پانی پیا تو پھر وہ میرے لشکر کا حصہ نہیں رہے گا۔ فشربوا منہ، تو الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، بہت تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے خوب پیٹ بھر کر اس نہر سے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے لشکر اور اس کے ساتھی، اس کے ساتھ آئے اہل ایمان کا لشکر، جب وہاں اس نہر سے آگے گزر گیا، اس نہر کو پار کر کے وہاں سے آگے چلے گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تب طالوت کے لشکر کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، آج ہمارے اندر وہ پاور نہیں کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ یعنی جب انہوں نے اس نہر کے پانی سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا نا، تو پھر ان کے اندر طاقت نہیں رہی، صلاحیت نہیں رہی، ان کے اندر ہمت نہیں رہی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو کم تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی ہے تو ایک نہ ایک دن ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو ان لوگوں نے اتنے یقین سے کہا کہ کتنے ہی کم من فئۃ قلیلۃ، کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کتنی ہی قلیل جماعت، تھوڑی تعداد میں جو لوگ تھے، غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ غالب آ گئے بہت بڑے کثیر لشکر پر، بہت بڑی تعداد میں کوئی لشکر یا جماعت ہو تو بہت تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی وہ غالب آ گئے، کیونکہ وہ اہل ایمان کا گروہ تھا، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ پانی دیکھ کر صبر نہ کر سکیں، پھر وہ کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ واقعہ کہ جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی، ان کی تعداد صرف چند سو تھی، انہیں صبر کرنے والوں میں، انہیں صبر کرنے والوں میں بوڑھے، وہ جو ضعیف ہو چکے تھے، ان کے نبی سموئیل بھی تھے، حضرت داؤد، ان کے والد، ان کے 6 بھائی، اور برا بن عازم کی روایت کے مطابق یہ صرف چند لوگ تھے، یعنی ان کی تعداد تقریباً اتنی تھی جتنی اصحاب بدر کی، تقریباً 300 کے قریب۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن ان زبانی شیخی بگاڑنے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، کہاں ہزاروں اور کہاں ان میں سے صرف چند سو رہ گئے، یعنی ہر 2,000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے۔ اب یہ جو اس آزمائش میں پورے اترے وہ صرف چند لوگ ہی تھے، چند گنتی کے چند 100 لوگ، لیکن ہزاروں لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ جو کامیاب ہوئے ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، یہ صبر کرنے والے تھے، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم تھوڑے سے تعداد میں رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح اور شکست، زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور استقامت اور توکل علی اللہ کا اظہار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی تعداد پر اور اپنے اسلحے پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنے زور بازو اور اپنی جسمانی طاقت یا اپنی ذہنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنے ایمان اور اپنے یقین پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اللہ की ज़ात पर भरोसा करते हैं। तो फिर ऐसे लोग इतने मज़बूत हो जाते हैं कि उनके सामने काफ़िर फिर ठहर नहीं सकते, ठहर नहीं पाते। अब ये जो आज़माइश हुई कि चुल्लू पर पानी की तो इजाज़त है कि थोड़ा-सा आप मुँह गीला कर लें, तकरीबन 1 ग्लास पानी बन जाता है, इतना पानी पी लें काफ़ी है। अब देखिए हम लोग खुद भी इस चीज़ को देखते हैं, जब रोज़ा खुलता है, तो हम में से अक्सर लोग 3-4 ग्लास एक साथ ऊपर-नीचे पी लेते हैं। और आप यकीन करिए एक साथ इतना पानी पी लें, ख़ुसूसन गर्मियों के रोज़ों में, एक साथ ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि हमारी तबीयत एकदम डाउन हो जाती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अक्सर रोज़ा खोलने के बाद हमारी तबीयत जो है ना, वो तकरीबन आधे घंटे के लिए थोड़ी-सी डाउन होती है। यानी आपके जिस्म में एकदम से ताकत खत्म हो जाती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा खाना भी खा लें और बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें खा लें ना एकदम इफ्तारी के टाइम, फ़ौरन यानी मगरिब की भी नमाज़ पढ़ने से पहले-पहले, तो फिर क्या होगा कि मगरिब की नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगी और हम इशा के लिए भी अपने अंदर और तरावी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है ऐसी सूरत-ए-हाल में। इशा की नमाज़ भी हमारे लिए बहुत भारी हो जाती है। तो इफ्तारी के वक़्त थोड़ा-सा पानी और खजूर खा लेना और सिर्फ़ ज़रूरी जितना थोड़ा-सा खाना, थोड़ा-सा ही कुछ खा पी के आप नमाज़ पढ़ें मगरिब की और उसके बाद मुनासिब सा खाना खा के यानी बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं। तो आप इशा की नमाज़ के लिए जाएँगे ना और तरावी के लिए तो फिर आप ताज़ा दम होंगे। और बाद में फिर इशा की नमाज़ के बाद आकर आप फिर खाना खा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से या इशा से पहले भी खा सकते हैं लेकिन बहुत हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। कि आपके अंदर फिर नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत ना रहे। और हम देखते हैं कि ऐसा होता है। आप अपने आप को देखिए, चेक करके देखें, तो ये भी हमारे लिए आज़माइश होती है कि सारे दिन की भूख-प्यास के बाद हमारा पेट एकदम से बहुत ज़्यादा खाना-पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो असल में हर कमांडर के लिए, हर लीडर के लिए ये ज़रूरी होता है कि किसी भी बड़ी जंग से पहले अपने साथियों के अज़्म और हौसले को परखता रहे, उनके अंदर जोश और जज़्बा पैदा करे, उनके अंदर डिसिप्लिन को कायम रखे। तो तालूत जो बनी इस्राइल का एक बादशाह था एक दौर में, तो उन्होंने भी अपने लश्कर को डिसिप्लिन सिखाने के लिए और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इस आज़माइश में पूरा उतरने के लिए उनको कन्विंस किया है। उनको कहा है कि आप इसमें से बहुत ज़्यादा पानी मत पिएँ, वरना आप जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेंगी, मेरे लश्कर से निकाल दिया जाएगा आपको। लेकिन हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर लोग आज़माइश में पूरा नहीं उतरे। असल में शैतान जो है ना, वो हमें उकसाता है, हमें अल्लाह की आज़माइशों में पूरा उतरने नहीं देता। हक के रास्ते में कामयाब होने वाले लोग और हक के रास्ते में नेक लोगों का साथ देने वाले लोग तादाद में कम ही होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ग़ज़वा बदर के लिए निकले थे, तो उन्होंने सहाबा किराम से मुशावरत भी की थी। उस वक़्त भी हम देखते हैं सूरह अनफ़ाल में ये वाक़यात बहुत तफ़सील से आए हैं, ग़ज़वा बदर के बारे में, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए जाने का इरादा ज़ाहिर किया, उस वक़्त भी सेम यही सूरत-ए-हाल थी कि सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाज़त माँग रहे थे। उस वक़्त भी यही कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया जाए और तुम उससे चीज़ चुराने लगो, उससे मुँह मोड़ने लगो। तो उस वक़्त भी सहाबा किराम ने यही कहा था, यानी तकरीबन यही सिचुएशन थी कि अगर हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया, हमारे बीवी-बच्चों को हमसे छीन लिया गया, हमारे काम कारोबार को हमसे छीन लिया गया, हमें अपने वतन से दूर कर दिया गया, तो हम क्यों नहीं कुफ़ार कुरैश से जंग करेंगे? हमें इजाज़त मिलेगी तो हम ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि जब ग़ज़वा बदर के लिए जिहाद की इजाज़त मिली है, तो उस वक़्त भी मुसलमानों में से ही, सहाबा किराम में से ही कुछ कमज़ोर ईमान लाने वाले लोगों ने जो है वो
इस बात को पसंद नहीं किया था। मुसलमानों की ही एक जमात ने इस बात को पसंद नहीं किया था कि अभी इतनी जल्दी हमें जिहाद के लिए क्यों हुक्म दे दिया गया। अभी तो हम क्योंकि ये हिजरत के बाद चंद महीनों के बाद ही जिहाद को की इजाज़त दे दी गई थी कि अभी तो हम सही तरह से सेट भी नहीं हुए मदीना में। तो अब एकदम से हम जिहाद के लिए कैसे निकल सकते हैं, हमारी तैयारी नहीं है, क्योंकि इनके पास सवारियाँ नहीं थी, असलहा नहीं था, तो अभी हम कमज़ोर हैं। तो उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं हम तिजारती काफ़िले को लूट लेते हैं, अभी हम लश्कर के साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बाहिम्मत थे, हौसले वाले थे। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरादा हो, हम आप हम आपके साथ हैं। हम हर हालत में आपका साथ देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हाज़िर हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि तालूत ने अपने लश्कर के लोगों का जो टेस्ट लिया, ठीक? कि वो मेरे हुक्म की पाबंदी करते हैं या नहीं, तो अक्सरियत नाकाम रही। तो अक्सर लोगों ने उस नहर के पानी से खूब जी भरकर पी लिया, मगर एक कलील तादाद में, बहुत थोड़ी तादाद में लोगों ने पानी ना पिया। तो जब वो दरिया पार करके आगे बढ़े तो तालूत और उसके साथी अहले ईमान, अब ये देखें जो पीछे रहने वाले थे ना, वो पीछे हो चुके थे, पीछे रह चुके थे। उनमें से जो किताल के ही मुनकर हो गए थे, वो पहले ही अलग हो चुके थे। अब यहाँ से दूसरी तरफ यानी जब वो निकले हैं ना अपने एरिया से, अपने इलाके से, तो जिन लोगों ने जिहाद का हुक्म मानने से इनकार किया था, यानी जिन्होंने मुँह फेर लिया था कि नहीं हम जिहाद के लिए नहीं निकलेंगे, तो वो तो पीछे रह गए पहले ही, वो तो आए ही नहीं इनके साथ। और दूसरी दफ़ा आज़माइश जो हुई नहर के ज़रिए, वो रास्ते में हुई, तो जो उसमें से भी नहीं निकल सके, वो पानी पीकर इतने बेसुध हो गए कि वो वहीं पर रुक गए, वो आगे बढ़ने के काबिल ही ना रहे। और तालूत अपने लश्कर के साथ उनको आगे लेकर नहीं गए, उन्होंने अपने लश्कर में इनको शामिल नहीं किया। ये ऐसा ही है जैसे ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 आदमी मदीना मुनव्वरा से निकले थे, फिर ऐन वक़्त पर 300 अफ़राद साथ छोड़कर चले गए। ये 300 अफ़राद वो थे जो मुनाफ़िक अब्दुल्ला बिन उबई के साथी थे। तो अब्दुल्ला बिन उबई इनका सरदार था, वो अपने 300 लोगों को लेकर अलग हो गया, हम आपके साथ नहीं चलेंगे और उसने बहाना ये बनाया कि आपने हमारे मशवरे पर अमल नहीं किया, इसलिए हम आपके लश्कर का साथ नहीं देंगे, हम वापस जा रहे हैं। तो जब तालूत और उनके साथियों ने जो ईमान पर साबित कदम थे, तो उन्होंने फिर जालूत के लश्कर का मुकाबला किया। जालूत कौन था? जालूत उस वक़्त के कुफ़ार के लश्कर का लीडर था, कमांडर था। वो एक बहुत कवि हैकल शख्स था। ज़रा बख्तर में उसका पूरा जिस्म इस तरह छुपा हुआ था कि सिवाय आँख के सुराख के जिस्म का कोई हिस्सा खुला नहीं था। उसने जब मुकाबले की दावत दी, तो कोई भी मुकाबले पर नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है कुफ़ार भी खूब तैयारी के साथ आए हुए थे और अहले ईमान के लश्कर में तादाद भी बहुत कम रह गई थी। तो बहुत बज़ाहिर यही लग रहा था कि काफ़िर गालिब आ जाएँगे। लेकिन जिन लोगों का ईमान मज़बूत था, उन्होंने यही कहा कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात तो करनी ही है ना, तो फिर क्यों ना आज के दिन ही से। यानी जिनका अल्लाह पर भरोसा और यकीन मुकम्मल था, तो उन्होंने यही फैसला किया कि अब इस लश्कर का मुकाबला करने से हमें मुँह नहीं फेरना चाहिए, बल्कि हमें हर सूरत में आगे बढ़कर हिम्मत और हौसले के साथ इस लश्कर का मुकाबला करना है। अगर हमारी शहादत हो जाती है तो अल्लाह से मुलाकात होगी और शहादत से इनकार किसको है? बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि अल्लाह के हुक्म से एक छोटी जमात एक बहुत बड़े लश्कर पर गालिब आई। ये कभी एक दफ़ा नहीं हुआ। ये अहले ईमान की तारीख़ गवाह है इन बातों पर। सो एक-दूसरे को वो हौसला देने लगे, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, कम हिम्मती का सबूत ना दो, अल्लाह से मदद माँगो, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।
اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ جب مقابلے پر آ گئے، فلما برزوا لجالوت بجنودہ، جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ، تو برازہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، آمنے سامنے آ جانا، یعنی دونوں لشکر میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف طالوت کا لشکر اہل ایمان کا، اور دوسری طرف جالوت کا لشکر۔ نام سے تو یہ دونوں بھائی لگ رہے ہیں، لیکن دراصل یہ دو مخالف لشکروں کے کمانڈرز کے نام ہیں۔ تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ افرغا کا مفہوم ہوتا ہے کہ کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اس طرح گرا دینا کہ اوپر والا برتن خالی ہو جائے اور نیچے والا بھر جائے۔ یعنی طالوت اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے دشمن کے مد مقابل آنے پر دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر دے، یعنی صبر کی بارش فرما دے، ہمارے اوپر صبر اس طرح انڈیل دے کہ ہمارے دل صبر سے بھر جائے۔ یعنی بے صبری اور وہ جو بے چینی ہے وہ ہمارے دل میں نہ رہے، ہمارا دل پوری طرح سے صبر اور استقامت اور یقین اور اعتماد کے ساتھ بھر جائے۔ وثبت اقدامنا، میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے، انصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنے زور بازو اور سامان جنگ اور اسلحے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی عاجزی سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اسی سے صبر و استقامت کی توفیق مانگتے ہیں، اور اپنی فتح کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو ابھی کل کیا بات ہوئی تھی کہ کیا تابوت سکینہ ان کے لیے فتح کی علامت تھا؟ تو یہ ان کی سوچ تھی، ایسا نہیں تھا۔ کسی بھی چیز کی وجہ سے فتح نہیں ملتی، فتح کے لیے آپ کو ہمت، طاقت، ایمان، بھروسہ، یقین اور اسلحے اور جنگ کی تیاری، یعنی ظاہری ساز و سامان بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ پر یقین۔ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب کبھی بھی اے اہل ایمان، جب کبھی تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو پھر پیٹھ نہ پھیرو، یعنی میدان جنگ سے فرار نہ ہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہ تمام دور کے، ہر نبی کے دور کے اہل ایمان سے یہی خطاب کیا گیا، اور اسی سے صبر و استقامت کی دعائیں بھی مانگو، اپنی فتح کے لیے دعا بھی مانگو۔ تو طالوت اور اس کے مختصر سے لشکر نے اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی گڑ گڑا کر دعائیں کی جیسے غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے دعائیں کی تھی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس تھوڑی سی جماعت نے، چھوٹے سے لشکر نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ ہزمو، ہا زا اور میم، شکست دی ان کو، یعنی کفار کے لشکر کو، کفار کے لشکر عظیم کو پھر ان لوگوں نے شکست دے دی۔ اور کیا ہوا؟ وقتل داود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا ترجمے میں کہ داود نے جالوت کو قتل کیا تھا یا قتل کیا داود کو جالوت نے؟ تو یہاں پر آپ، یہ دو لفظ ہیں، دونوں ہی اسم ہیں، اس میں سے ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے؟ تو کسی بھی لفظ کے، اب یہ آپ نے پوائنٹ بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر لینا ہے،
जब भी किसी इसम के आखिरी हर्फ के ऊपर पेश आ जाए तो वो फ़ाइल होता है, काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट। तो दावूदू जिसके ऊपर पेश आई है वो फ़ाइल है, यानी वो क़ातिल है। और जब किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए तो वो मफ़ऊल होता है। तो यहाँ पर मक़तूल जालूत है। कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को, व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशाअ, और अता किया उसको अल्लाह ने मुल्क यानी बादशाहत, वल हिकमा और हिकमत, व अल्लमहु और उसको जो चाहा उसे सिखा दिया, यानी इल्म, बेशुमार इल्म अता किया। तो ये दाऊद कौन था? ये एक नया किरदार है। पीछे तो बात हो रही थी तालूत और उसके लश्कर की। तो दाऊद जो थे ये तालूत के लश्कर में मौजूद एक साहिब ईमान सिपाही थे। ये वही दाऊद हैं जिनको बाद में नबूवत भी मिली, जिनको हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनको भी नबूवत मिली थी। ये जलीलुल कद्र नबी, इनको अल्लाह ने बादशाह भी बनाया था। तालूत के बाद जो अगले बादशाह बने ये हज़रत दाऊद ही थे। तौरात से ये मालूम होता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक चरवाहे थे, गडरिये थे, यानी भेड़-बकरियाँ चराते थे जंगलों में। ये इनके पास एक ऐसा, जिस तरह से हमारे पास होती है ना एक गुलेल होती है, इस तरह से इनके पास एक गुलेल टाइप चीज़ थी। तो उसके अंदर पत्थर रखकर वो इसको इस तरह घुमाकर मारते थे। उनका निशाना इतना सही था, उसके ज़रिए वो अपने बकरियों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उनको मार भगाया करते थे। इस तरह के उन जानवरों जंगली जानवरों का इस तरह निशाना लेने की इनको प्रैक्टिस थी कि वो उनकी आँख का और सर का निशाना लेते थे, तो वो उनका मुँह तोड़ देते थे, जबड़ा तोड़ दिया करते थे। जब तालूत और जालूत के लश्कर आमने-सामने थे, तो दाऊद इत्तफ़ाक़न वहाँ निकले। उन्होंने देखा, ये अब तौरात के बयान से पता चलता है, ठीक है? लेकिन दूसरी रिवायात में आता है कि ये इनके लश्कर का हिस्सा थे। यही वजह है कि हम तौरात के बयानात पर ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल कुरान के बयान से ये पता चलता है कि जालूत जो काफ़िर लश्कर का कमांडर था, उसको कत्ल करने वाले दाऊद थे। ये बयान तो कुरान ने दिया है। अब दाऊद जो थे इस लश्कर के अंदर सिपाही की हैसियत से थे, क्योंकि मैंने बताया एक रिवायत में हमने ये भी पढ़ा। लेकिन तौरात के मुताबिक वो अपने जंगल में अपनी बकरियाँ चरा रहे थे, तो बस वो इस तरफ आ निकले। उन्होंने देखा कि जालूत ललकार रहा है कि है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, लेकिन इधर सब के सब सहमे खड़े हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। ये देखकर उनकी गैरत को जोश आ गया। उन्होंने तालूत से मुकाबले की इजाज़त माँगी। कहने लगे कि मैं अपने जो भी उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था ना गुलेल की तरह का, एक आला बनाया हुआ था, तो शेरों के भी जबड़े तोड़ तोड़ देता हूँ मैं इसके ज़रिए, तो भला इसकी क्या हैसियत होगी? तो मैं अभी इसको कैफ़र किरदार तक पहुँचा देता हूँ। तो दाऊद ने सिपह-सलार की इजाज़त से अब चंद पत्थर लिए और अपने गुलेल के साथ उस देव हैकल जालूत के सामने जा खड़े हुए। जालूत ने उनका मज़ाक उड़ाया कि ये मेरा मुकाबला करेगा, वो भी अपनी गुलेल के अंदर पत्थर रखकर। लेकिन इन्होंने एक पत्थर रखा और उसे ऐसे घुमाकर छोड़ा कि वो सीधा उनकी आँख के सुराख से पार होकर उसके दिमाग के अंदर घुस गया और जालूत वहीं ढेर हो गया। ये थे दाऊद अलैहिस्सलाम, जो इतने जुर्रतमंद, इतने ताकतवर थे। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई दरिंदा अगर इनके हाथ आ जाता ना, यानी इसको वो ज़िंदा पकड़ लेते, जो इनकी बकरियों पे हमला करता, तो इसके निचले जबड़े पर पाँव रख के ना, इसके ऊपर के जबड़े को इतने ज़ोर से खींचते थे कि उसे चीर कर रख देते थे, इतने ताकतवर थे।
ये जालूत जो पत्थर लगने से हलाक हो गया, तो ये इनका जब कमांडर मर गया तो उसके लश्कर के हौसले पस्त हो गए। तालूत के इस मुख्तसर से लश्कर को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। बाद में वो बनी इसराइल के मुत्तफ़क़ अलैह और बिला शर्कत गैर बादशाह बन गए। तो अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत भी अता कर दी और हिकमत और इल्म यानी अपने इल्म और हिकमत से नवाज़ने के बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर नबूवत भी अता कर दी थी। तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया। इस तरह वो तालूत के दामाद हो गए। फिर तालूत बादशाह ने उनको अपना वारिस बनाया और वो बादशाहत भी उनको मिल गई। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और सल्तनत भी अता फरमाई, यानी बनी इसराइल की, और हिकमत और नबूवत से भी नवाज़ा। इन दोनों एतबारात से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को सरफराज फरमाया। ये सब इनामात इस वाक़ये के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर हुए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जो भी इल्म दिया, जो भी हिकमत दी, जो भी नबूवत, और फिर उनकी फिर वो नबी की हैसियत से तालीम और तरबियत हुई। तो ये था एक तारीखी पस मंज़र हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत से फिर बनी इसराइल को जो उरूज मिला है, तो फिर उस उरूज का इख्तिताम हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर ऐसी अज़ीमुश्शान सल्तनत मिली है। उसी दौर में बनी इसराइल ने इंतहाई उरूज का दौर देखा, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इनके अंदर फिर ऐसी नाफरमानियाँ आईं कि फिर इनका ज़वाल इंतहाई शिद्दत के साथ, तेज़ी के साथ इनकी तरफ बढ़ा। तो ये थी बनी इसराइल की तारीख में से कुछ वाक़यात। अब अल्लाह ताला जनरल बात बता रहे हैं, वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदुहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द। अगर इस तरीके से अल्लाह एक गिरोह को दूसरे के ज़रिए से दफ़ा ना करता रहता, यानी एक ताकतवर लश्कर की ताकत को अल्लाह दूसरे लश्कर की ताकत के ज़रिए तोड़े ना, तो ज़मीन तो फ़साद से भर जाती। मतलब ये है कि ये अल्लाह का कानून है। यहाँ पर अल्लाह ताला अपना कुदरत कुदरत का, फितरत का कानून बता रहे हैं। ये अल्लाह का एक बनाया हुआ एक उसूल है कि ज़मीन पर जब भी कोई गिरोह इंतहाई ताकत हासिल कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी ताकत को तोड़ने के लिए किसी और को इतनी ताकत दे देता है कि वो फिर इस ताकतवर गिरोह की ताकत को शिकस्त दे देता है। तो ज़मीन में जब भी फ़साद होता है, अल्लाह ताला कोई शक्ल ऐसी पैदा करता है कि किसी और ग्रोह को सामने लाकर मुफ़्सिदीन का ख़ात्मा करता है, उनकी ताकत को तोड़ देता है। अगर ऐसा ना होता, तो ज़मीन में फ़साद ही फ़साद फैल गया होता। अल्लाह ताला ने जंगों के ज़रिए से फ़सादी ग्रोहों का ख़ात्मा किया है। हर बड़ा फ़िरौन आता है, तो उसके मुकाबले में अल्लाह किसी फ़िरौन के मुकाबले में किसी न किसी मूसा को खड़ा कर देता है। इसी तरह अल्लाह ताला हर सरकश, हर फ़सादी के लिए कोई न कोई इलाज ज़रूर तजवीज़ करता है, ताकि अहले ज़मीन की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने लोगों ने भी खुद को सुपर पावर कहा, आज वो कहाँ हैं? आप देखते हैं कि उनको शिकस्त देने के लिए बहुत बड़े-बड़े लश्कर नहीं थे। अ, हमने अपनी ज़िंदगी में 2 पावर को सुना कि वो सुपर पावर है, यानी हमारे दौर की, जिस दौर में हमने ज़िंदगी पाई। एक था रूस और एक था अमेरिका। अब इन 2 सुपर पावर्स को किसने शिकस्त दी? ये भी सबके सामने है। तो बिल्कुल गरीब, कमज़ोर लोगों ने 2 सुपर पावर्स को हराया है। ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की, क्या ये अल्लाह ताला का जो है वो एक अज़मत की निशानी नहीं है कि अल्लाह ताला बहुत कलील तादाद में लोग होते हैं, लेकिन एक कसीर लश्कर को, हमने खुद देखा कि इत्तेहादी अफ़वाज की तादाद और उनका लाव लश्कर और उनकी जंगी तैयारियाँ और उनका डिसिप्लिन और सब कुछ हमारे सामने है। उनको शिकस्त किनके हाथों से हुई? जिनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, जिनके पास रहने के घर भी नहीं थे। उनके घर-बार बमबारियों में तबाह व बर्बाद हो चुके थे, और वो लोग अपनी जानों को बचाकर पहाड़ों के अंदर पनाह लेने और घरों के अंदर रहने पर मजबूर थे। उन्हीं जगहों पर जहाँ पर वो छुप कर रह रहे थे, वहीं पर उनकी एक नस्ल तैयार हुई पूरी की पूरी। 20 साल थोड़े नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ऐसी ईमानी ताकत अता फरमाई। ये आयत आपको सच होती हुई नज़र आ रही हैं, और आज हमारी आँखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। हमने खुद देखा, हमने खुद खबरों में सुना,
اللہ ताला ने हमें खुद ये सारी चीज़ें दिखाई। अगर अल्लाह ताला इन कुफ़ार के लश्कर कसीर को और इनकी ताकत को तोड़ने के लिए अपने मुजाहिदीन को तैयार ना करे, अपने अहले ईमान बंदों को तैयार ना करे और कलील तादाद में जो लश्कर होता है, उसके ज़रिए जब कसीर तादाद वाले लश्कर को, कुफ़ार को जो बहुत घमंड में और बहुत तकब्बुर में आकर मुकाबले पर आते हैं, तो अल्लाह ताला उनके तकब्बुर को फिर ऐसे तोड़ता है, ताकि पूरे अहले ज़मीन के ऊपर ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम होता है। वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। लेकिन अल्लाह ताला तमाम जहानों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि पूरी दुनिया की मखलूक़ात पर अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करते हैं और ये जो सुपर पावर्स होती हैं, ये अपने गुरूर और तकब्बुर में लोगों को कुचलती हुई गुज़रती जा रही होती हैं। आम इंसानों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत सारे बस्तियों और आबादियों के ऊपर हमले करते हैं क्योंकि ये बहुत ताकतवर हो चुके होते हैं ये ग्रोह काफ़िरों के। लेकिन अल्लाह ताला इन मुतकब्बिर ग्रोहों को फिर किस तरह से इनकी ताकतों को तोड़ते हैं, अल्लाह उनके मुकाबले में ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा, ये है अल्लाह की आयत जिनको हम पढ़कर सुनाते हैं। मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिलहक ये हक के साथ हैं, ये हक की बात बताते हैं और ये बनी इसराइल के दौर में तो ये वाक़या हुआ, तालूत और जालूत के लश्कर का मुकाबला हुआ। लेकिन हर नबी के दौर में जब भी कभी अंबियाए कराम और उनके साथियों ने कुफ़ार के बड़े-बड़े लश्करों का मुकाबला किया, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको हक के साथ फ़तह याब किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों से खिताब है कि आप पर सबसे पहले तो ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत पढ़कर सुनाई थी। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दौर के लोगों को सुनाई, तो अपनी पूरी उम्मत तक इस पैगाम को छोड़ा। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि हमने आप पर ये पैगाम हक, ये आयत हमने आपको पढ़कर सुनाई, तो मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिखाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को। तो ये हम सब के लिए ये आयत है, जो अल्लाह ताला हमें पढ़कर सुना रहे हैं और यही पैगाम हक है। ये सिलसिला ये बामकसद पैगाम पहुँचाने का सिलसिला आज तक जारी है, कि हम भी इन्हीं आयत को पढ़कर सुनाते हैं एक-दूसरे को। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और यकीनन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूलों में से हैं। यानी आखिरी आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी गई कि आप ये जो पैगाम सुना रहे हैं, ये जो तारीख के वाक़यात बता रहे हैं, ये बनी इसराइल के बहुत मारूफ और बहुत जाने-पहचाने वाक़यात हैं। ये इनके बच्चे-बच्चे को पता है इन वाक़यात का। तो इन वाक़यात को कुरान पाक में बयान करने का मकसद, ये वाक़या एक ही वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेम यही हालात थे, जैसे बनी इसराइल के इन 2 रुकूओं में बताया गया, जो लेसन हमने आज और कल पढ़ा है, सेम वही हालात थे, जब जिन हालात में ग़ज़वा बदर हुई थी। जो ग़ज़वा बदर पहली जंग थी, जिसकी इजाज़त दी गई थी मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद की जब इजाज़त दी गई, तो ये सेम बेआइनी ही वही वाक़यात हुए, जिस तरह बनी इसराइल के इस किस्से में बयान किया गया। तो अल्लाह ताला का कानून हर ताकतवर को जब वो अपनी हद से आगे बढ़ने लगे, जब वो सरकश होने लगे और अवामुन्नास को, अल्लाह की मखलूक़ात को रौंद कर जाने लगे और उनको तबाह व बर्बाद करने के लिए अपनी प्लानिंग्स करे, ऐसे-ऐसे मंसूबे बनाए कि अवामुन्नास को नुकसान हो, तो अल्लाह ताला उनकी ताकत को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जो उनकी ताकत को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ज़मीन पर ताकत को बैलेंस करते हैं, ताकि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात को सुकून मिले। ये अल्लाह का वो फ़ज़ल है, जो अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात पर किया, तमाम जहान वालों पर किया, और यही हमारे ऊपर भी अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने पहले एक सुपर पावर के टुकड़े किए, अब दूसरे सुपर पावर का क्या होने वाला है, ये अल्लाह ही जानते हैं, हम नहीं जानते। इसी तरह जो कोई भी अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुँचाएगा,
اللہ ताला उसकी ताकत को तोड़ने का इंतज़ाम खुद करेगा। इसलिए कि जो लोग अपना दिफ़ा नहीं कर सकते, जो कमज़ोर लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके दिफ़ा के लिए और लोगों को मजबूत कर देते हैं, जो उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये है अल्लाह ताला के कवानीन, जो क़यामत तक जारी रहेंगे। तो बनी इसराइल की तारीख़ में से हमें ये वाक़या मिलता है और इस लिहाज़ से ये आयातुल्लाह की जो बात, ये एक मोज़िज़ा भी है कि ऐसे वाक़यात हमेशा हुए, हमेशा होते रहे और क़यामत तक होते रहेंगे। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने अकेले जालूत जैसे जाबिर बादशाह को मार डाला और इस कत्ल से उसके लश्कर में इतनी अबतरी और इतनी उनके उनके दिलों में हौसला यानी उनके हौसले इतने पस्त हुए कि इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद वो लोग उन्होंने अपनी हार मान ली। तो अल्लाह ताला ने मुख्तसर सी जमात को गलबा अता किया और ये भी अल्लाह का ही एक इनाम भी था और अल्लाह का एक मोजज़ा भी है कि एक ऐसा चरवाहा जो बकरियाँ चराता फिर रहा है, उसको अल्लाह ने बादशाह बना दिया और फिर बादशाह ही नहीं, नबी भी बना दिया। तो ज़ाहिर है उस चरवाहे के अंदर कुछ ख़ुसूसियात होंगी, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया अपने ज़माने के लोगों के लिए और फिर पूरी कौम बनी इसराइल के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त लीडर बना दिया कि जो उनके नबी भी थे, उनके बादशाह भी थे। पूरे के पूरे इख्तियारात उनके पास थे और फिर इनके ऊपर किताब भी नाज़िल हुई। आपको पता है ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतहाई इबादत गुज़ार इंसान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की है, बहुत फ़ज़ाइल बयान किए हैं। सौम दाऊदी की तारीफ़ बयान की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे। इसको कहते हैं सौम दाऊदी। तो ज़बूर जो इनके ऊपर किताब नाज़िल की गई थी वो कुछ नज़्मों की शक्ल में थी, तो वो इनको गुनगुनाया करते थे। तो जब वो ज़बूर पढ़ा करते थे, ज़बूर के अल्फ़ाज़ जो भी कलाम उनके ऊपर नाज़िल हुआ था, वो जब उसको पढ़ते थे, तो वो इतना खूबसूरत आवाज़ में उसको पढ़ते थे कि वो जब जंगलों से गुज़रते थे, तो पहाड़ और पहाड़ों में इतनी गूंज पैदा होती थी कि जैसे-जैसे वो बोलते थे, तो पीछे-पीछे पहाड़ से आवाज़ आती थी। ऐसे लगता था जैसे पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो जो तस्बीहात थी, वो नज़्मों की शक्ल में थी, राइम्स की शक्ल में थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब उनको आप ऊँची आवाज़ में पढ़ते थे, गुनगुनाते थे, तो वो इनके की जो वादियाँ थी ना, वो गूँज जाती थी। ऐसे लगता था जैसे ये आगे-आगे पढ़ रहे हैं, तो उनके पीछे-पीछे पहाड़ पढ़ रहे हैं और परिंदे भी कहते हैं कि इनके साथ शामिल हो जाते थे। वो भी इनके साथ-साथ गुनगुनाया करते थे। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला कैसे एक एक बिल्कुल एक मुआशरे के अंदर एक बिल्कुल आम से इंसान को इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा अता कर दे कि उनके पास किताब और शरीयत और हिकमत, नबूवत, बादशाहत सब कुछ अता कर दे और फिर उनकी आल औलाद में भी ऐसी अज़ीम बादशाहत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह जिनकी हवाएँ भी ताबे हों और वो सिर्फ़ इंसानों के नहीं, हैवानात और जिन्नात पर भी हुकूमत रखते हों। ऐसी अज़ीम बादशाहत इस पूरी कायनात में किसी को नहीं मिली। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि